Kindly react with thumbs up if my voice is clear to everyone. Okay, students. If you have any confusion regarding your previous chapter or previous lecture, then kindly ask from me in a chat box. Write a message in a chat box. If you want to ask anything, everything is clear regarding last lecture. Okay, so we will start our today's lecture. Screen is clear to all of you? React with thumbs up or write in a chat box. Screen is clear to all of you? Okay, good. So today's our lecture number 3, second week, and chapter number 1, the computer system. Content of the chapters are classification of computer by size, hardware, software, and computer languages. And today's topic is software. Uh, about software, you can learn that define the term hardware, describe the different input devices, barcode reader, magnetic ink, character reader, etc. Describe the different output devices like LCD projector, Braille printer, and plotter. So beta, this is the solution of previous homework I gave you in last lecture, that observe the given figure on the right and answer the following picture. Page number 11, part A. I will give you 5 minutes. Note down on your copies. Hurry up. Take out your copies and note down. The first question is, what does the figure represent? A barcode reader is being used to scan a barcode. Number 2 question is, name the device used in the figure. Barcode reader. Number 3 is, name any 2 items on which you find such type of lines. And the name of the 2 things are biscuit packet and clothes. Hurry up, student. Note down on your copies. Note down on your copies. Muhammad Rehan, beta, where is your copy? Muhammad Rehan. Kinza. Beta, where is your copy? Sameer Majid. Bakir. Rispa Jamil. Take out your copies. Note down on your neat copies. It's your neat work. Kainat. Where is your copy? When you done this work, kindly react with thumbs up that I start today's topic, today's lecture.
Okay, time is finished now. We will start today's topic. Today's topic is output devices. What is output devices? Anybody knows? What is output devices? What is output device? Anybody know? Or what are output devices? Okay, we'll tell you. Output devices are devices which show or display the result of the input data. Like anything we input into the computer or any instruction we give to computer is called input through any device. So output devices convey information from the computer to the user. We will discuss output devices such as LCD projector, barrel printer and plotters, etc. LCD stands for liquid crystal display. LCD projector. A liquid crystal display projector shows the output from a computer on a large screen. It is commonly used for displaying presentation during meetings and conferences. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होता है, प्रोजेक्टर क्या होता है कि आपके पास ऐसी आउटपुट डिवाइस होती है जो क्या करती है, कंप्यूटर को एक लार्ज स्क्रीन के ऊपर आपको शो करवाती है. इट इज़ कॉमनली यूज फॉर डिस्प्लेइंग प्रेजेंटेशन. ये किस लिए भी यूज होती है, आपकी प्रेजेंटेशंस को शो करने के लिए, मीटिंग्स के अंदर और कॉन्फ्रेंसेस के अंदर. आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी कंप्यूटर लैब में भी प्रोजेक्टर पड़ा हुआ है जिसके थ्रू आप लोगों को एक प्रोजेक्टर के थ्रू आप लोगों को क्या शो करवाते हैं, एक बिग स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाया जाता है और प्रेजेंटेशन शो करवाई जाती हैं. तो वो हमारे पास होता है एलसीडी प्रोजेक्टर. द सेकेंड वन इज barrel printer. A barrel printer or embosser produce barrel printouts pattern of raised dots of computers files. क्या होता है कि आपके पास एक डॉट के थ्रू पैटर्न ड्रॉ करता है, ठीक है, और कंप्यूटर फाइल्स के आप लोगों को प्रिंट आउट देता है. इट वर्क विद द सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट टेक्स्ट टू बैरल. वो क्या होता है कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्क करता है आज जो कि आपके टेक्स्ट को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है. The number third one is a plotter. Plotter is a printing device. Plotter आपके पास क्या होता है, प्रिंटिंग डिवाइस है दैट इज यूज फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, जो कि यूज होती है किस लिए, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के लिए, चार्ट्स के लिए, ग्राफ के लिए एंड टेबल्स एंड डायग्राम्स के लिए, ठीक है. Plotter use ink pen or inkjet to create graphics on paper और polyester films. आपके पास किस लिए प्लॉटर किस लिए यूज होता है, इंक पेन होता है, ठीक है, और इंकजेक्ट होता है टू क्रिएट ग्राफिक्स, जो कि ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए यूज होता है ऑन पेपर, पेपर के ऊपर और पॉलिस्टर फिल्म के ऊपर, यानी कि आपकी कोई भी फिल्म मेकिंग हो रही है तो उसके ऊपर. दे आर कॉमनली यूज कंप्यूटर एडेड डिजाइन. ये आपके पास क्या होता है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, कैड होता है, एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग and CAM for printing houses, car parts, machinery, etc. Plotter are four types. Sorry, plotters are four types. आपके पास क्या होता है कि मैंने कोई जो CAM मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो भी हाउसेज वगैरह प्रिंटिंग का हमारे पास होती है, और कार पार्ट्स, मशीनरी वगैरह के डिज़ाइन जो प्रिंट होते हैं वो आपके पास किसके थ्रू होते हैं, CAM के थ्रू होते हैं. आगे फर्दर फ्लोटर्स की कितनी टाइप्स होती है, फोर टाइप्स होती हैं. द फर्स्ट वन इज ड्रम फ्लोटर, the second one is micrographic plotter, the third one is inkjet plotter and the fourth one is flatbed plotter. इसके बाद आप लोग के पास आते थे टॉपिक, today's topic, the second today's topic is software. The term software, what is software, anybody knows? Kindly write in the chat box that what is software, what is software. The term software refers to the computer program that are needed for running a operating a computer system. सॉफ्टवेयर रेफर क्या करता है कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर की क्या होता है, क्या सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होता है कि आपके सिस्टम के अंदर किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, यानी कि उस चीज़ को चलाने के लिए आपके पास क्या यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है. किसी भी सॉफ्टवेयर के बगैर आप लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते. A program is a sequence of step-by-step instruction to perform a particular task. प्रोग्राम क्या होता है कि एक सीक्वेंस होता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन की, जो कि क्या करता है, परफॉर्म करता है एक पर्टिकुलर टास्क.
सॉफ्टवेयर को आगे फर्दर क्लासीफाई किया जाता है 2 टाइप्स में। एक होता है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को आगे फर्दर 5 टाइप्स होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ड्राइवर्स। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की 2 होती है, पैकेज एंड यूटिलिटी। अभी हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे फर्दर। हम लोग आगे जैसे जैसे लेक्चर आगे होंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे तो हम लोग ये सारी जितनी भी टाइप्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर टू प्रोग्राम डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर किस लिए डिज़ाइन किया गया है कि आपके सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए किसको डिज़ाइन किया गया है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आप लोग कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जब एक ऑपरेशन कंट्रोलर ही नहीं होगा सिस्टम के अंदर तो वो आपके टास्क को कैसे परफॉर्म करेगा। These program assist in running application program। ये प्रोग्राम किस लिए यूज होते हैं? असिस्ट करते हैं यानी कि हेल्प करते हैं किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए या उसको रन करने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बताया था लास्ट, आपने डायग्राम में देखा कि आपके पास क्या था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ड्राइव्स में, इंटरप्रेटर्स में, कंपाइलर में एंड असेंबलर्स में। So today's things to remember. First we discuss output. Output devices convey information from the computer to the user. Output devices क्या होती है? Information करती हैं, कन्वे करती हैं, ठीक है, फ्रॉम द कंप्यूटर टू द यूजर। यूजर कंप्यूटर के थ्रू यूजर इनपुट क्या होता है कि यूजर की जो इंस्ट्रक्शन होती है वो कंप्यूटर को मिलती है, ठीक है। कंप्यूटर उस टास्क के ऊपर क्या करता है? काम करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है, और उसको प्रोसेस करके हम लोगों को आउटपुट शो करता है। और जो आउटपुट शो होती है हम लोगों को वो किसके थ्रू होती है? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। आउटपुट डिवाइसेस क्या करती है? हम लोगों को जो इंस्ट्रक्शन यूजर ने दी होती है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करती है, ठीक है। या कोई भी आउटपुट डिवाइस जो होती है वो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन हम लोगों को डिस्प्ले करती है और यूजर उसको देख सकता है। वो हमारे पास क्या होती है? आउटपुट डिवाइसेस होती है। द फर्स्ट वन था अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी प्रोजेक्टर। वो क्या था कि शो द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन अ लार्ज स्क्रीन, कि कंप्यूटर की जो भी आउटपुट हम लोगों को कंप्यूटर शो करता है उसको वो क्या करता है? एक लार्ज स्क्रीन के ऊपर शो करवाता है। The second one था Barylic printer और embosser produces Barylic printout pattern of phrase dots of computer files। कंप्यूटर की जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको क्या करता है कि एक पैटर्न डॉट्स से एक पैटर्न क्या करता है? बनाता है, ठीक है, और उसको हम लोगों को एक प्रिंट आउट प्रोवाइड करता है और हम लोगों को फाइल वो आउटपुट के यानी कि डिस्प्ले हो जाती है, यानी कि हम लोगों को हार्ड फॉर्म में मिल जाती है। द नेक्स्ट वन था प्लॉटर। प्लॉटर क्या था कि प्लॉटर इज अ प्रिंटिंग डिवाइस। प्लॉटर एक प्रिंटिंग डिवाइस थी दैट इज यूज, जो कि यूज हुई थी फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स एंड डायग्राम्स। किस लिए यूज हुई थी? हाई क्वालिटी के जो जितने भी आप लोग चार्ट्स बनाने होते हैं, ग्राफ्स बनाने होते हैं, ये डायग्राम क्रिएट करनी होती है। तो आपके पास किस लिए प्लॉटर यूज होता है कि हाई क्वालिटी यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर या ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर आप लोगों ने ग्राफिक्स के अंदर जो भी क्रिएटिंग हाई क्वालिटी पे चार्ट्स वगैरह का डिज़ाइन करना होता है, उनका प्रिंट आउट लेना होता है, टेबल्स वगैरह ड्रॉ की होती है, डायग्राम्स ड्रॉ की होती है, उनको आप लोगों ने आउटपुट फॉर्म में देखना हो तो वो आपको किस डिवाइस के थ्रू मिलती है? किस डिवाइस के थ्रू प्रिंट आउट होती है? प्लॉटर के थ्रू, ठीक है। आपके पास क्या होता है कि ये हमारे पास हाई क्वालिटी में प्रिंट आउट प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट वन इज होमवर्क। Open page number 11, part B. Open page number 11, part B. Hurry up, all of you. Open page number 11, part B. This is your homework. Mention today's date and day. You have to find out the answer of these questions. The first question is, what is the sheet shown in the figure called? The first question is, what is the sheet shown in the figure called? Page number 11, part B. The second question is,
Name the device used to check such type of sheets. Name the device used to check such type of sheets. The third one is, what purpose are these type of sheets used for? फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास था कि आपके पास जो शीट आपको डायग्राम बनी हुई है पेज नंबर 11 पे पार्ट बी में, वो जो फिगर आपके पास बना हुआ है वो शीट क्या शो करवा रही है आपको, आपने आंसर लिखना है कि वो शीट क्या शो करवा रही है। द सेकेंड वन इज, आपने वो डिवाइस का नाम लिखना है जो कि क्या करती हैं, चेक करती हैं सच टाइप ऑफ शीट्स। ऐसी शीट्स को जो डिवाइसेस चेक करती हैं उनका आप लोगों ने क्या लिखना है, उस डिवाइस का नेम लिखना है। द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट पर्पस आर दीज टाइप ऑफ शीट्स यूज्ड फॉर? ये जो शीट्स हैं आपके पास, ये किस पर्पस के लिए यूज होती हैं, आप लोगों ने ये लिखना है कि किस पर्पस के लिए ये वाली जो शीट्स हैं वो यूज होती हैं। नोट है, यू कैन यूज इंटरनेट फॉर योर हेल्प। आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर होमवर्क, और today's lecture is about to end. Now if you have any query, any question regarding this lecture, then kindly ask in a chat box. I will answer. If you have any question regarding today's lecture, then ask in a chat box. Yes, beta, you have to write in your note copy, on your note copy. Okay, sure. You have to write these question answer on your neat copy, but not today, after tomorrow. Because tomorrow I will discuss the answers of these questions. After that you have to write on your note copy. Today you have to write previous homework, previous lecture homework on your neat copies. Okay, go to question answer. Okay, I will, beta, wait a bit.